Mukaddam. I'm based. Okay, I think we should start again. It started streaming now. Okay, hi everyone. Welcome to day 2 of Breast is Best Summit on Baby Chakra on Facebook. And today joining us is Dr. Shubhanjali Sen from Agra. Our topic for the day is ideal nutrition for the mother after delivery. And both of us are experienced in our own fields. As you know, I'm a family physician, I am a postpartum educator, and I educate breastfeeding as well as postpartum mothers after delivery. And today we are going to be touching upon this topic. I have written extensively about this in my book, Newborns and New Moms. And on our panel today is our expert, Dr. Shubhanjali Sen from the Sen Hospital, Agra. She's an obstetrician and gynecologist with 8 years of experience, and she's also a laparoscopic surgeon. Welcome to Baby Chakra, Dr. Shubhanjali. थैंक यू हेलो एवरीबॉडी गुड इवनिंग नमस्कार जो लोग मुझको सुन रहे हैं एंड इस ब्रेस्ट फीडिंग वीक में जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीक है सब एंटीनेटल पोस्टपार्टम लैक्टेटिंग विमेन को मैं कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इसके बारे में आई कुड जस्ट हेल्प यू टू गिव सम टिप्स एंड इट विल हेल्प यू फॉर योर लैक्टेटिंग पीरियड. Thank you, Dr. Farah, for introducing me and adding on to me on this platform. You're most welcome, Dr. Shubhanjali. Let's just give a quick intro to our entire topic so that Hello, am I audible? Yeah, now you're audible. हाँ, बीच में कट गया था. So we're going to be talking about myths and facts about colostrum, issues during breastfeeding, and myths around the foods that we need to eat during lactation. And we will wrap up this talk talking about how to prepare the breast during pregnancy for optimal lactation after delivery. So if you are interested in any of these topics, if you know a friend, a relative, or anyone who can benefit from this, ping them right now and ask them to join us on Facebook Live. This will be streamed on Baby Chakra also, so you can catch it later. You can have a watch party. All you pregnant mommies, get your snacks and you can have a watch party of this with your friends. So let's get started. And Dr. Shubhanjali, so you're a gynecologist, you're an obstetrician, you deliver every day. So please give us your take on the importance of colostrum and what myths that we see in our practices every other day. Who all we have to convince ki please colostrum pila do. We had touched upon it yesterday with Naya, and Dr. Shubhanjali will take it further. Are we having an issue? Yeah, hello. Dr. Yes. Dr. Shubhanjali, yes, you can continue. Yeah. Okay. So, Dr. Farah, you have actually touched a very, very important and very sensitive topic. Can you hear me? Yes, very loud and clear. Okay, yes, please tell us. So I'll just continue. So it's a very, very important. और इसके लिए कोलेस्ट्रॉल के लिए इतने मिथ्स हैं, इतनी भ्रांतियां हैं, और लोगों को हम बिल्कुल समझाना चाहते हैं. बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है कोलेस्ट्रॉल एंड व्हाट इज एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल. जैसे ही कोई भी मदर एक बच्चे को डिलीवर करती है, उसी समय से एक बिल्कुल पदार्थ एक ऐसा होता है, ट्रांसपेरेंट पदार्थ, मींस इट इज वेरी चिपचिपा, स्टिकी इन नेचर, इट्स लाइक दिस, एंड इट इज ट्रांसपेरेंट एंड इट इज स्मेल, बिल्कुल उसमें स्मेल नहीं होती है, कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस होता है. दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल, जो सिर्फ शुरू के 5 दिनों में ही एक मदर प्रोड्यूस कर सकती है फ्रॉम द ब्रेस्ट. तो जैसे ही बेबी डिलीवरी होता है, वैसे ही इट इज एक्चुअली मेडिकली रिकमेंडेड और वेरी लॉन्ग एजेस ये चीज है हमारे को सिखाई जाती है. हम अपने आगे की जनरेशन्स को समझाना चाहते हैं कि जैसे ही आपका बेबी डिलीवर करता है, इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी आपको अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करना है. एंड उसका जो
Exactly. And remember when we were speaking about this topic initially, when we had connected via Baby Chakra, uh, you mentioned and how you have to convince your patients parents, like जो grannies होती है, जो न्यू grannies होती है, उनको convince करना पड़ता है कि प्लीज बच्चे को कोलेस्ट्रॉल पिलाइए, बिकॉज उनके हिसाब से ये तो पानी है, ये तो वेस्ट है. So would you like to say something about that? Yeah, I would like to say about that कि क्योंकि कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. Why it is important? It is because कि जो उसमें एंटीबॉडीज और जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाले न्यूट्रिएंट्स हैं जो आप बच्चे को जिंदगी भर कभी दे ही नहीं सकते इन एनी काइंड ऑफ मेडिसिन. मीन्स वो अमृत है. अगर अपने बच्चे को आप कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं उसकी जिंदगी के लिए, तो शुरू के 5 दिन का जो दूध है दैट इज दी lifetime gift to the baby which is in the form of cholesterol. और उससे जो इम्यूनिटी, जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो बाहर के माइक्रोब से लड़ने की शक्ति है, उससे जो हमको मिलती है, वो आप कोई भी एंटीबायोटिक्स, कोई भी आप लैक्टोजन, कोई भी आप काउज मिल्क दे दें, द बेबी विल नॉट हैव दैट. बेबी नहीं बना पाएगा अपना एंटीबॉडी का सिस्टम. So colostrum is the gift to the baby you can give So in true. your mother. Yeah, that's so true. And in fact, oh, you're back. And in fact, yesterday, me and Naya also discussed a bit about the challenges of breastfeeding. एक तो colostrum, as you said, doctor, very rightly, that this is अमृत है ये. And the second thing I want to, am I audible? Yeah. Yeah. The second thing I want to stress, Shubhanjali? One second. I think we're having some internet issue. I'll just, before I. Dr. Shubhanjali, are you there? One second. So sorry, technical issue चल रहा है. I can't even. Okay. Okay. So Dr. Shubhanjali का internet में थोड़ा सा गड़बड़ है. So anyway, I'll just tell my point, and she's trying to get back. So the thing we spoke about cholesterol earlier also, and we cannot stress enough कि ये जो cholesterol होता है बच्चे की आंत को कोट कर देता है, और फ्यूचर में फूड एलर्जी से ये इंश्योरेंस दे रहे हो आप अपने बच्चे को. दैट जो आते जो होती इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं वो कोट हो जाती है विद द एंटीबॉडीज एंड विद द न्यूट्रिशियस फैक्टर्स इन द कोलेस्ट्रॉल, एंड जो एक्सपोजर फ्यूचर में फूड से आएगा, दिस इज द इंश्योरेंस दैट द बेबी हैज कि फूड एलर्जी से ये बच्चा बच सकता है. और हम हमारी प्रैक्टिस में काफी देखते हैं कि हमको कन्विंस करना पड़ता है, या तो वो लोग बोलते हैं नहीं पतला है, ये वेस्ट है. And I spoke about this yesterday also with Naya, and this is very important कि पहले के जो 3 से 5 दिन आते, जब तक वो छठी का दूध नहीं आता है, पतला रहता है ये. Hi, welcome back, Shubhanjali. Yeah, We were waiting for you. Yeah, I think there is पतला some आता है दूध. Yeah. So that is, वो दूध पतला रहता है, क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी रहती है, कुछ बूंद ही आएगी, बच्चा सक करेगा तो ही सप्लाई बढ़ेगा. And the importance is, this is the period of the first 3 to 6 days is a period of dry sucking. आपको लगेगा दूध नहीं आ रहा है, छातियां नहीं भरती है माँ की, उनको ऐसा लगता है अरे दूध नहीं आ रहा है, छातियां नहीं भरी, ओवरफ्लो नहीं हुआ. नहीं होगा. बॉडी इज वेरी स्मार्ट, वो रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करती है. ड्राई सकिंग जब करेगा बच्चा, जिसमें एकदम थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़े बूंद जाएंगे बच्चे के, विच इज इनफ फॉर द बेबी. बच्चा माँ की से बॉन्ड कर लेता है, एंड वो ब्रेस्ट को मालूम पड़ता है कि अभी दूध प्रोड्यूस करना है, एंड देन द actual white breast milk will start coming. And so Dr. Shubhanjali, in your daily practice you must be seeing so many mothers कि आते हैं कि ये लैच का इशू है, बच्चा अटैच नहीं हो पा रहा है. मतलब लैच मतलब बच्चा जो मुंह में अटैच करता है ब्रेस्ट को, and the hurdles that you see in, I'm talking about the technical aspects. Could you please touch upon that? Yeah, it's again a very important issue to understand. बेसिकली क्या होता है कि पोजीशन ऑफ द मदर एंड द पोजीशन ऑफ द बेबी ही इस प्रॉब्लम के इशू को सॉल्व कर सकता है. तो यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि देयर आर 2 कंडीशंस. फर्स्ट इज अ नॉर्मल डिलीवरी पेशेंट एंड सेकंड इज अ सिजेरियन सेक्शन पेशेंट.
क्योंकि उनकी प्रॉपर पोजिशनिंग नहीं हो पाती है, इसलिए बेबी लैच नहीं कर पाता है। सेकेंड ऑफ ऑल द कंडीशन इज द काइंड ऑफ द ब्रेस्ट। कभी कभी क्या होता है कि ब्रेस्ट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे इन्वर्टेड निपल्स हैं, उनके क्रैक्ड निपल्स हैं, उनके एक्चुअली में इवर्टेड है, मीन्स अंदर की तरह में रिट्रैक्टेड है, मीन्स निपल्स का प्रोट्रूजन नहीं है, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट एंड द निपल इज नॉट देयर, जिसकी वजह से बेबी प्रॉपरली उसको लैच नहीं कर पाता है। कभी कभी बच्चे का जो फ्रेन्यूलम है, मीन्स देयर इज एनी काइंड ऑफ कंजेनाइटल एनॉमली टू द बेबी, बच्चे की टंग टाइड है टू द पैलेट, तो वो प्रॉपरली लैच नहीं करेगा। अगर कंप्लीट क्लेफ्ट पैलेट है, अंदर का पूरा की पूरा जो क्लेफ्ट पैलेट है उसमें कोई लॉस है, तो बच्चा प्रॉपरली वैक्यूम क्रिएट करके सक नहीं कर पाएगा। दीज आर सर्टेन इश्यूज जो आते हैं। सो देयर आर टू थिंग्स व्हिच वी कैन फोकस अपॉन। अगर कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, दैट कैन नॉट बी सॉर्टेड आउट विद द साइकोलॉजी, लाइक काउंसलिंग सेशन दैट हैज टू बी गोइंग थ्रू विद द पीडियाट्रिक सर्जन। लेकिन अगर हमको कोई भी ऐसी चीज दिख रही है जहां पर मदर अपने बच्चे को लैच नहीं कर पा रही है, तो हमें उसको प्रॉपर टेक्निक ऑफ लैक्टेशन सिखाना पड़ेगा। तो हम पेशेंट से कहते हैं यू शुड सिट अपराइट, यू शुड नॉट लीन बैक। अगर आप अपनी कर्व्ड करके क्या नाम है बैक ऐसे बैठेंगे, तो आप प्रॉपर जो निपल है वो बच्चे के मुंह में नहीं दे सकते हैं, वो पूरा की पूरा ब्रेस्ट बच्चे के नाक को एकदम से प्रेस करेगा। बेबी विल नॉट बी एबल टू डू द सकिंग, मीन्स वैक्यूम नहीं बनेगा। तो द पोजिशन ऑफ द मदर हैज टू बी अपराइट। सेकेंडली, जब हम बच्चे को होल्ड करते हैं, यू शुड जस्ट होल्ड द बेबी लाइक दिस, सो दैट यू कैन, जो बेबी का हेड है वो प्रॉपरली चिन से आपको बच्चे को आपको बेबी को चिन से अपने ब्रेस्ट पे लगाना है, और नाक को कभी भी ब्रेस्ट से प्रेस नहीं होने देना है। सो देयर आर टू वेज। आप अपनी दो उंगलियां, दिस इज द इंडेक्स एंड द मिडिल फिंगर, ये ब्रेस्ट है तो आप इसको प्रेस कर लें, तो जो बल्क ऑफ द ब्रेस्ट होगा वो पीछे की तरफ प्रेस हो जाएगा, एंड द निपल, द बेबी विल बी एबल टू होल्ड द निपल। एंड सेकेंडली कि हम उसको सी शेप बना लें अपने हाथ को। आई थिंक यू कैन सी दैट। इस सी शेप से, ये अगर आपका ब्रेस्ट है, यू कैन जस्ट पुश द ब्रेस्ट बैकवर्ड्स। विद दिस व्हाट हैपेंस इज कि प्रॉपरली हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम निपल को प्रॉपरली बेबी के मुंह में लैच कराने की कोशिश करें। तो दैट Okay, it's stuck. Just 1 second. She's talking about a very important topic, and the net is again throwing a tantrum. Okay, so I think I seem to have lost. She's gonna come back now. I'm really sorry, guys. She's giving such pearls of wisdom over here, and bar internet sata raha hai. So yeah, we will continue with the technical aspects of breastfeeding once Dr. Shubhanjali comes back. And the next point we want to touch upon is that me and Dr. Shubhanjali had discussed before this call, कि हमको ये प्रॉब्लम बहुत देखने मिलता है जहाँ पे अरे माँ थक गई है, अरे माँ बच्चा इतना रो रहा है, बच्चे को पूरा दिन चूसना है। फर्स्ट आई वांट टू गिव एन स्मॉल एस्टिमेट बोल के कि 3 से 5 दिन बच्चा, इफ वर्स्ट हफ्ता पकड़ लो, बच्चा बहुत सक करेगा, बहुत परेशान हो गए। बट द ट्रूथ इज if the kid goes on the mother's milk, he's taken a liking to the breast. वरना अगर हम ये देखते हैं, अगर ब्रेस्ट और बॉटल साइड बाय साइड इंट्रोड्यूस होते हैं तो बच्चा बॉटल को फेवर करता है, बिकॉज द मिल्क कम्स वेरी इजीली, उतना एफर्ट नहीं लगता है। So many a times, the time when the kid takes a liking to the breast because he's introduced only to the breast, वो नहीं छोड़ने वाला है माँ को, that is taken, especially for the first 3 months बहुत प्रॉब्लम होते हैं। But the problem that we see is कि बड़े आके, घर के बड़े आके बच्चे को दूर लेके चले जाते हैं माँ से, दूर लेके चले जाते हैं माँ से, तो हमको ये प्रॉब्लम मिलता है that kid is not getting enough stimulation. वो जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग इज नॉट जस्ट लाइक माँ का प्यार, माँ की ममता, एंड वो चलता रहेगा। there's a lot of hormonal changes which is happening in the mother as well as the father actually also. And when the child is next to the mother, एक तो उसका जो that hormone which will contract the uterus and bring down the milk, these two will increase.
by just close proximity, milk आना increase होगा. And the other thing that we see is that don't second guess the mother. बच्चे और माँ को adjust होने में time लगेगा. The first thing, if there are any elders joining in, thank you for joining us. आप हमारे चैट देख रहे हैं, बट अगर आप कोई माँ को देख रहे हैं, अगर आप किसी की भाभी हैं, अगर आप किसी की सास है, माँ है, और that woman is delivering, support them. We should just support them unconditionally. We should just support them unconditionally कि बच्चे को माँ के पास रखो. Don't let the mother get too overwhelmed by the presence of the baby. You can be supportive, but बच्चे को दूर लेके चले जाना बार बार माँ से कि नहीं माँ को रेस्ट करने दो. This is the time when they will take in each other's smells. There's a lot of psychological and physiological things happening if the baby is just next to the mother, and that itself will bring the milk. And we have our doctor back, and this topic, I just spoke on the next topic where we see the family itself being too supportive, and that is counter to lactation. But I'm sure our audience wants to know about, last we heard was about the C shape. So could you just start from there? We understood the nipple latch, and please tell us about the C shape and how you held the breast. Yes. So I was talking about the C shape. You have to make a cup. ऐसे आप cup बनाइए, C shape cup बनाएं. And if imagine this is the breast, you just hold it. This is the nipple. और आपने इसको पीछे की तरफ थोड़ा सा retract किया है. बहुत ज़्यादा press नहीं करना है. You just have to retract a little so that the idea is कि बच्चे के मुंह में सीधे सीधे nipple जाना चाहिए. So that properly जो chin होता है, baby के chin है. हाँ, you wanted to say something? I want to ask, I know this, but our audience would want to know, what do you mean by nipple? Is it just the top part? Is it the colored portion? So please specify that for our audience. It is an areola. Areola में आप ऐसे देखेंगे, अभी diagram नहीं है, पर imagine करिए जितनी lactating women हैं, they can just concentrate on the nipple. There is a protuberance, एक बड़ा सा protruded part होता है center में, जो approximately 1 centimeter के करीब लंबा होता है, उसको हम कहते हैं nipple. उसके चारों तरफ एक डार्क कलर का सर्कल होता है जो पूरे के पूरे ब्रेस्ट के चारों तरफ होता है, उसको एरियोला कहते हैं. उसके अंदर उस एरियोला के, ये मान लीजिए एक एरियोला है और यहाँ पर एक प्रोट्रूबरेंस है, which is the nipple. इसके बीच में छोटे छोटे tubercles जैसे होते हैं, छोटे छोटे tubercles. उनको we have a specific word called Montgomery tubercles. तो हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि उस Montgomery tubercles पे बच्चा को लैच करना है, क्योंकि वैक्यूम डेवलप नहीं होता. देखिए, लैक्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि एक सरफेस पे बच्चे का मुंह चिपका है जिसने वैक्यूम डेवलप किया है और वो उसको सक करे चला जा रहा है, जिसकी वजह से जो मिल्क है वो अपने आप निकल रहा है. बिकॉज ऊपर से कुछ प्रेशर नहीं है. देयर इज नो प्रेसिंग फोर्स ऑन द ब्रेस्ट. इट इज अ पैसिव मिल्क विच इज गोइंग, और यहाँ पे रुका हुआ है अभी दूध इन दी दिस योर ब्रेस्ट. नाउ वी हैव मेड अ वैक्यूम विद द हेल्प ऑफ द बेबीज माउथ. इसलिए अगर वो वैक्यूम डेवलप नहीं हुआ तो वो पूरा की पूरा दूध क्या होगा, बेबी के मुंह में नहीं जाएगा. इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारा जो पोजिशनिंग ऑफ द बेबीज फेस है, इट शुड बी कि अगर दिस इज अ चिन, सो चिन को आपको नीचे ब्रेस्ट के नीचे लगाना है और फिर बेबी को ऐसे पुश करना है. आप अगर बेबी को सीधे ऐसे लेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू हैंडल द बेबी. तो सबसे पहले चिन को आप ब्रेस्ट के नीचे लगाएं, सबसे डोमिनेंट पोर्शन पे, और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ योर अनदर हैंड आप प्रेस करिए ऊपर, और इस वाले हाथ से आपने ब्रेस्ट को ऊपर किया और इस वाले हाथ से आपने बेबी को होल्ड किया. दैट शुड बी द पोजिशन ऑफ फीडिंग द बेबी. तो जब आप ये वाला हाथ फोल्ड करते हैं तो इसमें बेबी का बॉडी है, और इस वाले जो आपका लेफ्ट हैंड है इसमें बेबी का हेड आता है. सो यू विल नॉट हैव प्रॉब्लम. But problems कहाँ आती है? When we have a fixed mind that we are doing a wrong position like when a female lady has delivered the baby, definitely she'll be lethargic, बहुत ज़्यादा थकी हुई, बहुत ज़्यादा प्यासी, बहुत agitated होती है, तो उसको बॉडी को मन करेगा कि she wants to twist and turn her body because it is very painful. But उसको थोड़ा सा we have to promote, we have to give her positive vibes. हमको सबको सपोर्ट करके एक मदरहुड को स्टार्ट कराना है. तो इम्पोर्टेंट चीज इसमें रखना है कि वी शुड नॉट कीप द हैंड लाइक दिस. लाइक हम लोग लेटते हैं, साइड लेटते हैं, और साइड लाइंग डाउन में हम ऐसे हाथ करके लेटते हैं. ये पोजीशन हम कभी मत करिए. अगर आपने ये वाला पोजीशन किया, व्हाट विल हैपन, वी हैव सम डक्ट्स ऑन इन द आर्मपिट. आपका सारा के सारा दूध आपके आर्मपिट में चला जाएगा, विच विल बी वेरी पेनफुल, एंड यू विल नॉट बी एबल टू फीड द बेबी.
and you will have starting having pain on this side of your body. So when you are lying down, उसमें आपको position क्या करनी है, आप अपने तरफ करवट ले लीजिए और आप अपना हाथ ऐसे रखिए, यहाँ पे तकिया है, and you put your hand like this. You don't have to do like this. I think Dr. Farah, you will be able to understand this. The hand of the mother should be like this so that you can rest your baby here. Okay? And then again, with the help of your right hand or the left hand, whichever breast you are sucking, you are making the baby suck. आप अपने को या तो आप C shape में या V shape में या जैसे भी है, आप baby को latch कर सकते हैं. So these are the two methods which you should concentrate and try to make the posture correct. जब आपका posture correct होगा, आपको थकान नहीं होगी, आपके बच्चे को परेशानी नहीं होगी, बच्चा struggle नहीं करेगा, उसको proper vacuum develop होगा, you will be able to feed your baby properly. Yes, that was such valuable information because एक तो मैं देखती हूँ पेशेंट्स को completely discourage करते हैं कि लेट के पिलाना ही नहीं है दूध, बच्चे को स्मदर कर दोगे, बच्चा दम घुट के मर जाएगा, which is not true. And you need to even think about कि खुद के बारे में सोचना है कि 9 महीने बच्चे को पेट में ग्रो हुआ है या born the baby for 9 months और डिलीवरी के बाद बैक मसल्स, लोअर बैक मसल्स वीक होते हैं and that back pain will kill you. You'll be like one grandmother. तो बैक वर्कआउट नाउ इज नॉट द टाइम कि डिलीवरी करते बैक वर्कआउट शुरू करो एंड क्रंचेस तो करना ही नहीं है, बहुत सिंपल बेसिक स्पाइन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस है. आई एक्चुअली मेड अ वीडियो ऑन दैट आल्सो ऑन माय YouTube channel. And that you can start 3 months later, but right now give your back as much rest as you can. बैठ के भी पिलाइए, लेट के भी पिलाइए. I'm so glad you spoke about all this. So let's go to the next topic. Dr. Shubhanjali, वो आपका जब internet disconnect हुआ था, that time I started talking about the role of the family and how we both discussed how we have to like sit and convince the families कि please आप ऐसे कीजिए, आप एक तो कोलेस्ट्रॉल पिलाइए and overwhelm मत कीजिए, बच्चा दूर लेके जाइए. So please tell us your viewpoints and your experience in your clinic. It's actually a very sensitive thing for me because continuously when I'm going for the rounds and I'm asking the patients कि आपने दूध पिया है, मैं because I'm a young doctor, so I face more challenges explaining the mother-in-laws and the grandmothers to understand the importance of breastfeeding क्या है. और एक्चुअली मैं देखिए मैं आई एम नॉट सेइंग एनी रॉन्ग वर्ड्स अबाउट एनी रिचुअल्स. मैं रिचुअल्स, कल्चर्स, एथिक्स में बिलीव करती हूँ, परंतु जहां पर साइंस और जहां पर इम्पोर्टेंस ऑफ सर्टेन चीजें आती हैं, इश्यूज आते हैं, उसमें मेरा ये मानना है. एंड इवन इट्स नॉट माई एविडेंस, इट इज द एंटायर साइंस इज गोइंग फ्रॉम मोर देन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स. इट इज सेइंग, जैसे आई विल जस्ट टेल यू 2-3 स्टोरीज जो हम सुनते हैं रोज. मैंने आज सुबह बेबी को डिलीवर किया एंड आई विल गो आफ्टर लाइक 2 hours और 3 hours. तो पहला सेंटेंस आएगा, हमने बच्चे को दूध इसलिए नहीं पिलाया क्योंकि हमें तारों की छांव में पिलाना है. दैट इज वन थिंग वेरी कॉमन. सेकेंड थिंग कि बच्चे की बुआ आके बच्चे को दूध पिलाएगी. दैट इज अनदर थिंग विच इज वेरी कॉमन. और थर्ड चीज में छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ हमने उसे शहद चटा दिया, हमने उसको कुछ और चीज जो वहां के रीजनल लोगों में होता है. तो देखिए इस प्रकार की चीजें मैं पिछले 8 सालों से नॉर्मल डिलीवरीज और सिजेरियन के पेशेंट्स को डील कर रही हूँ. एंड एवरी डे लाइक 4-5-6 लेडीज से हम डील करते हैं. तो हमें इस प्रकार की लेडीज से जिनकी डिलीवरी कराया एंड वी मीट लॉट ऑफ फैमिली मेंबर्स. अब यहाँ पे बड़ा एक स्ट्रगल आता है कि हम उन्हें समझाना चाहते हैं कि without offending them. Yes, I have to fight. Sometimes it happens कि मेरे को वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, like they are like my mothers to me and my grandparents to me, but I have to fight with them. See that you don't know the concept of science. अगर एक वर्ड होता है कंगारू मदर केयर, it is called KMC, though it's a very very technical thing, लेकिन यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी महत्ता ये होती है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ, मींस यहाँ हमने नॉर्मल डिलीवरी कराई और हमने बेबी को वो गंदे स्टेट में ही बच्चे मदर के ब्रेस्ट फीड पे रख दिया. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि जैसे ही बच्चा सकलिंग रिफ्लेक्स करना शुरू करता है, बच्चा रोता है तो बच्चे की ये मैस्टिकेटिंग मसल्स काम करनी शुरू करती हैं. उसको ये पता चल जाता है यहाँ से मुझे कुछ मिल रहा है, उसे नहीं पता क्या देना है. बिकॉज सी बेबी इज कंडीशन्ड, स्किन को भी चूसने लग जाता है. We have seen there are patients who understand us and who promote KMC, kangaroo mother care,
और वो इमीडिएटली डिलीवरी के बाद हम बेबी को जैसे ही ब्रेस्ट पे रखते हैं, हमने देखा है रोते हुए बच्चे को हमने ब्रेस्ट पे रखा, दे स्टार्ट डूइंग दैट दिस काइंड ऑफ मूवमेंट। इस मूवमेंट से क्या होता है, जो ब्रेस्ट है उसको पता चल गया कि यहाँ से अभी मिल्क निकलना शुरू होना है। सो दैट व्हाट हैपेंस इज द मिल्क का जो रिफ्लेक्स साइकिल है, मिल्क की साइकिल बनने की सिचुएशन शुरू हो जाती है। अभी हमारे को क्या दिक्कत हुई कि मॉर्निंग में 6 AM पे बच्चा डिलीवर हुआ और रात को 8 बजे तक बच्चे ने दूध नहीं पिया। देन व्हेन वी विल आस्क कि भाई आपने दूध पिलाया या नहीं पिलाया, तो दे विल से कि अभी दूध नहीं आ रहा। देखिए, दूध बनने की कंडीशन को समझने की कोशिश करिए। जितना पास बच्चा अपने माँ के रहेगा, उतनी जल्दी जल्दी मदर को दूध बनता है। ये डॉक्यूमेंटेड है, ये एविडेंस बेस्ड है। इट इज नॉट लाइक दैट आई एम जस्ट सेइंग, इट इज देयर, यू कैन रीड द टेक्स्ट। और आप ये देख सकते हैं कि विद इन 4 आवर्स अगर आपने बच्चे को 4 to 6 आवर्स मदर से दूर किया, मिल्क बनना वहीं बंद हो जाएगा। तो आप सोचिए कि ये जितने भी मिथ्स हैं, कि आपने तारों की छांव में दूध पिलाया, आई रिस्पेक्ट दैट, आपने तारों की छांव में दूध पिलाया, ठीक है, पर अब जिस प्रकार का कंडीशन है, हमारे बच्चे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं बिकॉज द डाइट, जो डाइट हम लोग ले रहे हैं उसका 100% एब्जॉर्प्शन नहीं है। तो इस वजह से हमको बच्चे को वो इम्यूनो बूस्टर्स देने हैं जो इम्यूनो बूस्टर्स हम ऊपर से नहीं दे सकते हैं। मदर का जो कोलेस्ट्रम है 3 to 5 डेज का, उसमें जो हमारे IgA नाम की एक एंटीबॉडी बनती है, वो IgA नाम का एंटीबॉडी किसी भी रूप के वैक्सीन में नहीं है, किसी दवाई में नहीं है, किसी और आर्टिफिशियल मेथड में नहीं है। तो वो चीज सिर्फ 5 दिन ही मिल सकती है बच्चे को। और अगर आपने उसको वंचित कर दिया उस दूध से पीने के लिए, तो वो बच्चा आपका कैसा होगा, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, उसको बहुत सारी बीमारियां होंगी। So now this is a very important thing and a message I want to personally give the message to all the ladies who are antenatal, जो बच्चे जिनके होने वाले हैं, जिनके बच्चे हो चुके हैं, और लाइट गई लगता। Okay, I think there's a power cut at Dr. Shubhanjali's place. We will continue from there. She has a very important message for the mothers. And next, we will move on to the topic of foods to give to moms for optimal lactation. और अभी हमने कह दिया थोड़ा सा घर के बड़ों के अगेंस्ट. We don't want to speak against them, but we want to tell them what is right for the baby. Ultimately हम सब बच्चे के हित में सोच रहे हैं, माँ के हित में सोच रहे हैं. It's not to offend anybody. And the thing that I want to speak about here is हमने बोल दिया ना, elders ने ऐसा किया वैसा किया. Now let's speak in their favor and we are going to touch up upon the topic of foods. And I've written an entire book and one entire chapter is devoted to the diet of the new mother. And you can check out my book, Newborns and New Moms. It's available on Amazon. I'll link it down below. Here, I want to talk about the diet of the new mother. Dr. Shubhanjali will also join us and she'll also give us her inputs. But एक तो चीज है, लोग जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उनको ये कहना है कि अभी बच्चा निकल गया, वो इतने मतलब 15 किलो 10 किलो हमने जो पुट ऑन किया प्रेगनेंसी में, that also has to go instantly. हेलो डॉक्टर, आई एम बैक. हाँ, पावर कट हो गया ना, लाइट चली गई थी. I saw. So sorry. I have just started with the diet. I just introduced the topic. 2 things. Yeah. You were giving us a very wonderful message for mothers. So you could quickly wrap that up and we have an audience question for you. Yeah. Yes. So I was just telling you one important thing, a message I wanted to tell everybody. And it is a very, 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 very serious message कि please, 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 जैसे ही बच्चा डिलीवर हो, चाहे आपको दूध आ रहा है या नहीं, आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड पे रखें. बेबी ऑटोमेटिकली सकल करना सीखता है और दूध आना शुरू होता है. एंड यस, मैं एक चीज जरूर कहूंगी, जो भी दर्शकों की मदर इन लॉज या मदर या ग्रैनीज देख रहे हैं, उनको मेरी बात हो सकता है अच्छी ना लगे, लेकिन आज के इस परिवेश में जिसमें हम रह रहे हैं, उस परिवेश में हमको वो बच्चे को वरदान है जो वो 5 दिन का दूध है, जो बिल्कुल पारदर्शी है, जो चिपचिपा है, जो आपको लगता है कि वेस्ट है, वो हमें बच्चे को एक ऐसे अमृत की तरह देना है जो अमृत उसको जीवन दान देगा. बस मैं इस वाले टॉपिक में यही कहना चाहती हूँ. Okay, so before moving on to the diet of the mother, which I'm sure most women are like really
dying to hear because diet मतलब हम सुनते ही हमारा weight lose भी हो जाता है. So there's an audience question. I want to ask if left side milk is salty. नहीं, ऐसा नहीं I है. want you to answer this one. No, it's not like that. See, though it's a very long answer, but to make it very short, दोनों breast में बराबर milk बनता है और जो milk होता है वो अलग अलग phases में होता है. इसीलिए हम कहते हैं शुरू के 5 दिन में colostrum है, उसके 15 दिन में transitional milk है, उसके बाद पूरे 6 महीने तक mature milk है और उसके बाद होता है involutional milk. तो इन सारी चीजों में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो वैरी करते चले जाते हैं. शुरू में जब आप कोलेस्ट्रम देते हैं तो उसमें ग्लूकोज और उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ज्यादा होते हैं और लास्ट में जब आप इन्वोल्यूशनल या मैच्योर मिल्क पे जाते हैं तो उसमें मैच्योर मिल्क में आपका जो सॉल्ट का कंटेंट है वो बढ़ जाएगा क्योंकि बच्चे को हम ऊपर से कुछ नहीं दे रहे. तो बच्चे का सारा सॉल्ट और उसके मिनरल्स और उसका कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन वो टोटल मैच्योर मिल्क में होता है. लेकिन जैसे जैसे हम इन्वोल्यूशनल मिल्क की तरफ आते हैं आफ्टर 6 मंथ्स तो उसमें प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा हो जाती है. तो ये इस तरीके से विभाजित होता है. एंड एक और बात है कि जब आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं, द इनिशियल मिल्क हैज मोर वाटर कंटेंट एंड मोर ग्लूकोज, दैट इज द फोर मिल्क. और उसके बाद जो दूध आने लगता है दैट इज मोर प्रोटीन एंड फैट रिच. ठीक है, तो ये दूध इन अ वे इट्स नॉट एग्जैक्टली wrong whether the question she has asked is the milk salty. Yes, the initial milk suppose आप right side से पिलाए हैं पहले and four milk बच्चे को जो गया है जो थोड़ा सा dilute रहता है, बच्चे की प्यास बुझती है, उसको instant energy मिलती है. उसके बाद का जो दूध आता है hind milk and then maybe if you move on to the left side that will be a little thicker because it is fat rich and protein rich और वो बच्चे को सुला भी देगा, टुन करके सुला देगा बच्चे को. So that question what you asked is actually a very valid और मैंने ये काफी बार सुना भी है. Salty है and different characteristic taste का, maybe someone tasted it out of curiosity or something. Yeah, there is a difference in taste. It is not salty per se, but आप जैसे जैसे पिला रहे हैं ना, tailor made बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से निकलता है. पहले वो प्यासा है, उसको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए ताकि वो सस्टेन कर पाए वो जो मेहनत लगती है बच्चे का माँ का दूध चूसने में. So moving on to our next topic, Dr. Shubhanjali, I started introducing जब आपका disconnect हुआ था, is the diet of the new mother. So हमको बहुत सारी चीजें and this is the time जब हम सारी अगर हमने किसी को offend किया है ये बोल के कि ये myth है वगैरह, now we'll give it back to them, we'll tell them आपने जो कहा है गरम खाना ठंडा खाना, we'll give it the science behind it ताकि सारे माम इंटरनेट पे जाके अगर गूगल करोगे हॉट फूड है, गरम खाना क्या है, ठंडा खाना, कुछ एलोपैथी आपको देगा नहीं, बट इसमें भी काफी विजडम है. एंड हर मिथ जरूरी नहीं कि हम वैलिडेट करें, हम काफी मिथ्स को ये भी कहेंगे कि ये गलत है, ये सही है. सो प्लीज ट्यून इन. अगेन रिमाइंडर, पिंग योर फ्रेंड, हैव अ वॉच पार्टी. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कमिंग अप फॉर द नेक्स्ट couple of minutes. The next arm of the session is about the diet of the new mother. So let's start, Dr. Shubhanjali. Okay, this is actually you can tell us about what the mother should actually have. देखिए, मैं I think I have given a very elaborative talk on the nutrition for an antenatal woman, and if those ladies are also watching and connecting to us, तो मैंने उस समय में उनको एक क्लासिफिकेशन समझाई थी कि जहां पर जो भी डाइट हम लेते हैं, चाहे हम लाइफ के किसी भी फेज में हैं, it all basically depends upon what is your build. You can be an underweight mother, you can be a okay weight, means an apt weight mother, or you can be obese or a morbidly obese mother. So जो भी आपका डाइट है, जो भी आपका न्यूट्रिशन है, वो बेसिकली इसी चीज पे निर्भर करता है. क्योंकि ये बात समझनी जरूरी है डाइट बताने से पहले कि जो ब्रेस्ट होता है, एक बहुत बड़ा मिथ हमारे सामने ये आता है. समटाइम्स द एंटीनेटल वुमेन यूज्ड टू कम टू अस एंड से कि द साइज ऑफ द ब्रेस्ट इज वेरी स्मॉल. Will I be able to feed my baby? This is a very good and an important question, and it is important to understand. देखिए, साइज ऑफ द ब्रेस्ट नो डाउट मैटर करता है ब्रेस्ट फीडिंग में, क्योंकि जितना बड़ा ब्रेस्ट होता है उतना रिजर्वोयर आपके पास ज्यादा होता है, एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द फीडिंग टू द बेबी बिकम्स वेरी सिंपल. पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी जो है वो एक एक्टोमॉर्फिक बॉडी है, मींस जो खाया वो मेटाबोलाइज हो गया तो आप खाते ही चले जा रहे हैं. दिस यू डोंट हैव टू डू. So it will become a very long session talking about this, but now I'll come to the thing that what should we eat when you are lactating.
देखिए, जो भी खाना आप खा रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन। मिल्क जो होता है वो तभी बनता है जब आपका शरीर का हाइड्रेशन भरपूर है। अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं, मतलब आपने पानी का कंटेंट, या Just explain hydration to the audience. yes, I'm just explaining hydration. Hydration means proper water intake of the body. अभी आप ये सोचिए कि आपका जो वेट है वो 60 kgs का है और आप एक 3 किलो के बच्चे को दूध पिला रहे हैं, और उस बच्चे को जो पूरा की पूरा दूध लेना है पूरे दिन में, वो अप्रोक्सीमेटली जैसे जैसे एज बढ़ता चला जाता है वो 52 ml, 60 ml, 70 ml से अप्रोक्सीमेटली 1.5 लीटर तक दूध पीता है जब वो 3 मंथ्स का हो जाता है, 4 मंथ्स का हो जाता है। तो आप सोचिए कि हमारा पूरे शरीर के अंदर 5 लीटर तो हमारा शरीर के अंदर फ्लूइड है, और आप 1 से 1.5 लीटर अपने बच्चे को दे देते हैं। तो आप सोचो कि आपको अपने चलने के लिए कितने हाइड्रेशन की जरूरत है, मींस डबल ऑफ व्हाट यू आर टेकिंग। तो 3 लीटर्स तो हम नॉर्मली कहते हैं, जो एक नॉर्मल साधारण इंसान है उसको पानी लेना है। लेकिन जब आप लैक्टेट करा रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि प्लस 1.5 लीटर्स मोर। It can be in the form of water, it can be in the form of milk, or it can be in the form of juices. Milk जो होता है उसका जो क्वांटिटी है, you should increase the milk quantity plus the frequency. This is also in the hydration. आपने पानी पिया, वो आपके स्वेट में, वो आपके यूरिन में, वो आप बेबी को जब दूध पिला रहे हैं उस समय में सारा सिक्रीट करेगा और आपकी बॉडी भी उसको एब्जॉर्ब करेगी। जो मिल्क होगा, it will help in the production of the milk. Dr. Farah, am I audible to you? Am I audible to you? Dr. Farah, am I audible to you? Okay, I'll just carry on. There is some link issue. So I was talking about the hydration. So now I would like to talk about the milk content. So for the milk content, I would like to say कि आप frequency जो दूध पीने की होती है उसको आप increase करें. Means every 2 hourly take 120 ml cup. Means छोटे से ग्लास में आप गर्म दूध, उसमें आप हल्दी डाल सकते हैं, किसी में आप कोई भी प्रोटीन पाउडर डाल सकते हैं, आप सिर्फ फीका दूध ले सकते हैं, आप जो दाल दलिए की खिचड़ी बनाते हैं उसमें चीनी डाल के आप दूध ले सकते हैं। मीन्स यू हैव टू टेक अ मिल्क रिच डाइट, बिकॉज जितना अच्छा आप मिल्क लेंगे उतना अच्छा आपका दूध बनेगा। सेकेंडली, डाइट में हम इस चीज की बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि हम घी पिलाएं पेशेंट को, मीन्स लैक्टेटिंग मदर को, सो दैट जितना हम घी पिलाएंगे उतना ज्यादा हमारा दूध बनेगा। देखिए, घी गैलेक्टोगॉग शब्द का मतलब है जो पदार्थ दूध बनाने में सहायता करती है। तो घी एक गैलेक्टोगॉग नहीं है। जो गैलेक्टोगॉग खाने होते हैं वो होते हैं अजवाइन और जीरा, और जो सौंठ के लड्डू बनते हैं घर में, और जो उसमें गोंद डाला जाता है या आटा होता है। इस प्रकार के बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जो आप लोग बड़े फेमिलियर होंगे। किसी किसी के घर में पंजीरी बनती है, कहीं पर गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं, कहीं पर हरीरा बनाया जाता है। देयर आर लॉट्स ऑफ कॉम्बिनेशंस। ये रीजनल फूड्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये जितने भी खाने होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, ये सारे के सारे आपको क्या मदद करते हैं? कैलोरीज को बढ़ाने में मदद करते हैं। अब देखिए, इस चीज का एक एसोसिएशन है। वेलकम बैक डॉक्टर फरा, आई वाज मिसिंग यू देयर। मेरी lecture है इस बार। Yeah, it's okay. So I was actually telling the audience about the calories and the breast milk. तो जब हम फूड के अंदर कैलोरीज बढ़ाते हैं तो वो ब्रेस्ट मिल्क को पोटेंशिएट, गैलेक्टोपोएसिस को करने में मदद करता है, मींस मिल्क बनने की प्रक्रिया में मदद करता है। तो इसीलिए जितने भी ये पदार्थ हैं, जैसे ये लड्डू हैं, हरीरा है, ये क्या है? दीज आर रिच इन ड्राई फ्रूट्स एंड दीज आर रिच इन सो मच लाइक शुगर कंटेंट।
तो ये क्या करते हैं, गुड़ जब ये रहता है। कैलोरीज को बढ़ाते हैं तो ये दूध की मात्रा को बढ़ाते चले जाते हैं। तो आई विल से कि ऐसा नहीं है कि आप ये सब चीजें ना खाएं, परंतु हमको ये देखना पड़ता है कि हमको कितना खाना है। अभी प्रेगनेंसी है और अभी डिलीवरी हो गई है और अभी बेबी हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी आड़ में हम 3-3 लड्डू 4-4 लड्डू खा रहे हैं और हम सुबह भी हरीरा खा रहे हैं और दोपहर में भी हरीरा खा रहे हैं। मतलब आई हैड एन एक्सपीरियंस डे बिफोर यस्टरडे। सुबह रात को डिलीवरी हुआ था पेशेंट का मिडनाइट में, हम मॉर्निंग में राउंड लिया और हमने पूछा आपने क्या क्या खाया, तो शी आंसर्ड मी मैंने 3 लड्डू खाए और मैंने घी में भुने हुए फ्रूट्स का हरीरा खाया और मैंने अजवाइन का पानी पिया। सो आई वॉज लिटिल टेकन अबैक कि इतना सब कुछ तुमने खा लिया, परंतु इसमें एंड देन द पेशेंट इज कंप्लेनिंग कि उसको पॉटी नहीं आ रही है, उसको पेट में दर्द हो रहा है, उसको चक्कर जैसा आ रहा है। So to summarize this, I actually tried to make her mother-in-law and the grandpeople कि देखिए आप इसे दाल खिलाइए, आप इसे रोटी खिलाइए, आप इसको जो इस समय फ्रूट्स हैं जैसे सेब खिलाइए, चीकू खिलाइए, बनाना खिलाइए, सो दैट शी विल गेट अ रेडी एनर्जी। आपने वो नहीं खिलाया और आपने डायरेक्टली इसको इतना हैवी सामान खिला दिया जिसमें रफेज नहीं है। अगर आपने बहुत सारा फैट्स खा लिया और आपके शरीर में रफेज नहीं है तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, वो पास कैसे होगा, स्टूल नहीं जा पाएगा, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमको बैलेंस डाइट तो लेना ही लेना है। मींस दाल, दूध, हरी सब्जियां, फ्रेश फ्रूट्स। फ्रेश फ्रूट्स का मतलब है रीजनली जो उस समय में उपलब्ध हैं, ये नहीं कि हम इंपोर्ट करके मंगा रहे हैं। आपके रीजन में एवोकाडोस नहीं, यस एवोकाडोस, आपके रीजन में एवोकाडोस नहीं है और आप पूरी पेटी एवोकाडोस उसको खिला रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपके रीजन में अगर खूब सारा सेब अवेलेबल है, आप रोज एक सेब उसको खिलाइए। सो लाइक दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल feed the mother with the balanced diet, give her adequate milk, and after that when you think कि भाई उसकी बॉडी के अंदर मिल्क प्रोडक्शन की थोड़ी कमी आ रही है, वो बच्चे को प्रॉपरली फीड नहीं कर पा रही है, तो आप ये सब ऐड करिए। अगर आपको ये सब करना है, आई जस्ट ऐड वन मोर पॉइंट डॉक्टर फारा, अगर आपको ये सारी चीजें ऐड खिलानी है तो उसको आप एक डाइट चार्ट बनाइए। मीन्स आपने सुबह से लेकर दोपहर तक पूरा खाना खिलाया और उसको एक लड्डू एक दिन में खिलाया। This is I'm talking why, because we are all the women of this globe right now. At present, we are all sedentary. We are hardly doing any work. We are not doing झाड़ू पोछा। हम झाड़ू पोछा नहीं करते, हम घर की सफाई नहीं करते, हम बाहर चल के नहीं जाते, हम साइकिल नहीं चलाते। We are going in a car. We have all the electronic gadgets with the electric switch, with this button. We are not washing our clothes, right? In this situation, we do not need extra calories. So for the nutrition, only thing to summarize is you take your balanced diet and add to it, you take all these high calorie. So true. And हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप ना खाएं वो लड्डू, वो जो आपको पदार्थ देते हैं, जो दूध बढ़ाता है, जो आपको बदन में गर्मी देता है, कि ना दें. Now she has spoken too much of rich food, but in my practice typical urban में क्या है, अभी तो वेट कम करना है जैसे ही बच्चा निकला, so these are the people who will completely skip it, and that's when the mother, दादी सास है, माँ है, जो बोलेंगे गरम खाने खाओ और ठंडे खाने मत खाओ. And मैंने बेबी चक्रा के साथ एक पहले वेबिनार किया है where I spoke about गरम खाना और ठंडा खाना. I'll just briefly explain it. Now गरम खाने का क्या मतलब है, इसका ये मतलब कि बॉडी में या इन अ वे गर्मी पैदा होती है बिकॉज दे आर रिच फूड्स, फैटी एसिड कंटेंट ज्यादा रहता है, जैसे नट्स रहते हैं एंड गुड़ रहता है, सो दीज विल गिव यू एनर्जी. बट ठंडे खाने का ये मतलब नहीं कि आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा. ठंडा खाना मीन्स इट हैज अ हायर वाटर कंटेंट, एंड ठंडा खाना नहीं देना is not exactly right. There are certain foods which next Dr. Shubhangi Lee will take up that will cause gas in the mother and it will affect the breastfeeding quality and the child's fussiness. But before that I'll explain जो ठंडा खाना होता है, जैसे ककड़ी होती है, फ्रिज की नहीं, बाहर रखी हुई तुरई की सब्जी होती है, इनको ठंडा खाना इसलिए बोलते हैं बिकॉज समर्स में आप जब खाते हैं, नॉट जस्ट प्रेग्नेंट और डिलीवरी के बाद, जनरली में भी अगर आप समर्स के बाद ये खाते, समर्स में खाते हैं, दैट इज एडवांटेजेस बिकॉज इसमें वाटर कंटेंट ज्यादा रहता है एंड it will hydrate you and it is better to eat. Whereas जो winter season था, अभी की नहीं बात कर रही हूँ, अभी तो सबके पास हीटर है,
और विंटर सीजन क्या होता है हमको एग्जैक्टली वो मालूम ही नहीं है, बट दैट टाइम हम लड्डू खाते थे पहले के जमाने में, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया गर्म खाना और ठंडे खाना, बिकॉज दे वर सीजन में खाते थे। और माँ की डिलीवरी के बाद उसकी इम्यूनिटी कम रहती है, शी गोज इनटू एन इम्यून रीएक्टिवेशन स्टेट and her immune system is all over the place. It's not as less like it was in pregnancy, and it is not normal. It's transitioning and there are a lot of changes happening. So you do eat these rich foods, but as Dr. Shubhanjali said, in moderation. And ये जो ड्राई फ्रूट्स है, ये गुड़ है, ये गोंद है, these will help in increasing the milk supply. और इसका जो हेल्दी फैट है, जो घी का हेल्दी फैट है, और जो आलमंड्स है, जो भी ड्राई फ्रूट्स है, काजू है, जो भी आप खा रहे हैं, इनका जो फैटी एसिड प्रोफाइल है वो आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन से बचाएगा, आपको अच्छी नींद देगा। जो खसखस है वो आपको एडिक्ट नहीं बनाएगा ओपियम का, वो भी आपको अच्छी नींद देगा, आपको सुकून मिलेगा। एंड इसमें इतने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बोलते हैं ना, भर के है, जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, ये सब भर के हैं, फोलिक एसिड भर के हैं इन ड्राई फ्रूट्स में। सो प्लीज ईट इट इन मॉडरेशन। और ये जो अगर आपके बड़े घर के बोल रहे हैं ये गर्म खाना है, ये ठंडा खाना है, वो गलत नहीं बोल रहे हैं। सो या दिस इज आवर रिडेम्पशन कि हमने अगर कल्चर के अगेंस्ट थोड़ा सा कह दिया है, वी आर सॉरी, कान पकड़ के सॉरी, बट वी आर नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट यू, वी आर स्पीकिंग इन फेवर ऑफ द चाइल्ड एंड द मदर। एंड हियर वी आर टेलिंग कि आपकी दादी, नानी, माँ, सास सब गलत नहीं बोल रहे हैं when they are saying that. It's just वो फ्रेम करने का तरीका है, it's from the olden times and we are explaining it in the light of science. So coming back, please tell us the foods that will make the baby fussy and that will cause gas in the mother, because delivery के बाद हम बहुत gassy रहते हैं first 3 months तक, baby and mom extremely gassy. So there are certain foods which you should avoid and Dr. Shubhanjali is going to touch upon that. There are not much foods, but yes, देखिए दाल की अगर हम बात करते हैं तो दाल has got a beautiful protein content. और दाल में जो पोस्टपार्टम आपको दाल खानी चाहिए वो मूंग और मसूर, क्योंकि सबसे आसानी से पचने वाली दाल ही यही है। अगर आपने बाकी की दाल खाई, जैसे उड़द की दाल है, दाल मखनी है, और ये चने हैं, काले चने हैं, एंड लोबिया है, इसमें क्या होता है, इसमें जो कंटेंट ऑफ प्रोटीन्स है वो बहुत ज्यादा है और इसमें पूरा दिन लग जाता है। तो अगर बाय द वे आपके मन किया और आपने 1 या 2 चम्मच चने या छोला खाया, इट शुड बी इन द मॉर्निंग डाइट, इट शुड नॉट बी इन द नाइट, बिकॉज नाइट में बहुत ज्यादा गैस बनता है। But I would suggest all the lactating mothers that please avoid such heavy proteins in the form of pulses, number 1. Yeah. And ये जो आपने point बोला बहुत important है, and I have mentioned this in detail from China's perspective, क्योंकि मुझे सिर्फ इंडिया की माँ सास के बारे में नहीं बोलना, मैं चाइनीज के बारे में बोलना था। The problem with that I have faced is कि ऑनलाइन जाओ, प्रोटीन का क्या सोर्स है, ब्रेस्ट फीड करो तो प्रोटीन 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 चाहिए, प्रोटीन का क्या सोर्स है, सोयाबीन। दुनिया में कुछ है ही नहीं सोयाबीन के अलावा। एंड द प्रॉब्लम विद सोयाबीन, आपने जो कहा बहुत सही कहा, इट हैज अ लॉट ऑफ ईस्ट्रोजन आल्सो इन इट, इट विल रिड्यूस द मिल्क सप्लाई। तो आप जो सोया प्रोटीन है, प्लीज उसकी पूजा मत कीजिए, बिकॉज दैट इज नॉट समथिंग यू शुड हैव एटलीस्ट इन द फर्स्ट 3 months आफ्टर डिलीवरी। उसका ईस्ट्रोजन कंटेंट ज्यादा है, उसमें टैनिन्स है दैट विल रिड्यूस द अब्जॉर्प्शन ऑफ अदर मिनरल्स। तो ये नहीं बोली सोयाबीन गलत चीज है, बट दैट इज नॉट द टाइम टू हैव इट। एंड जैसे डॉक्टर ने कहा है, सुबह में खाइए और थोड़ा सा खाइए जस्ट टू फुलफिल अ क्रेविंग कि मन किया। बट जो इन्होंने दाल, मसूर और मूंग है, दे आर इजियर टू डाइजेस्ट एंड दे आर लेस गैस फॉर्मिंग। प्लीज कैरी ऑन डॉक्टर। And then if the people who are actually a non-vegetarian, they are very fond of taking mutton. Specifically, I would like to say कि जो मुस्लिम्स हैं उन लोगों को मटन उनके डाइट में बहुत चाहिए होता है। Here to emphasize, देखिए मटन जब आप खाते हैं, आपको मनाही नहीं है खाने में, परंतु जब आप मटन खाते हैं तो उसमें पानी आपको 4 गुना ज्यादा लेना पड़ेगा। अगर आपने नहीं लिया तो वो वहीं जम जाएगा मटन, एंड इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेबिलिटी। आपको लूज मोशंस होंगे, आपको बहुत पेन होगा, और जब आपको गैस बनेगा, पेन होगा, सो यू विल से कि डॉक्टर के ऑपरेशन या डिलीवरी की वजह से प्रॉब्लम है। सो आई वुड से कि मटन को, इफ यू कैन स्टॉप टेकिंग मटन फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एटलीस्ट प्यूरपेरिया में 45 डेज का एक प्रसूति टाइम होता है, सूतक लगना होता है, जिसमें हम ये कहते हैं कि आसानी से पचने वाले वो खाने जिससे आपको बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक इरिटेबिलिटी ना हो, जैसे मिर्च मसाले की चीजें या तली भुनी चीजें या मैदा की बनी हुई चीजें जो आपको डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम करती हैं। तो दालों में मैंने आपको बता दिया, नॉनवेज में मैंने स्पेसिफिकली मटन का नाम लिया बिकॉज एवरी डे वी सी पेशेंट्स हु आर ईटिंग मटन एंड दे आर हैविंग कॉन्स्टिपेशन इश्यूज। या डॉक्टर फरा।
या एंड एडिंग टू द मटन कि देखिए डिलीवरी के बाद आपका लिवर काफी इन्फ्लेम्ड रहता है, काफी वीक रहता है, उसको बहुत चीजें मेटाबोलाइज करनी है, वो आपके पूरे जो हार्मोन हाई लेवल्स थे पूरी प्रेगनेंसी में, दे हैव टू गो बैक टू अ ब्रेस्ट फीडिंग स्टेट। तो आप अपने लिवर को जरा सुकून दीजिए, इतने हैवी खाने ना खाइए। और आपको अगर नॉनवेज की क्रेविंग हो रही है, देयर आर सिंपल थिंग्स दैट यू कैन हैव। देयर आर टू थिंग्स, बोन ब्रॉथ एंड सूप्स। जो बोन ब्रॉथ है, जो सपोज आपको मटन की बहुत तलब है, दिस इज फॉर मुस्लिम फैमिलीज, हमने जो तलब वर्ड यूज करी मैं, फॉर दैट आपको अगर है, आप पाए का सूप खाइए, सिरे का सूप खाइए। बोन ब्रॉथ जो होता है वो पूरा अच्छे से लीच कर देता है, 1 घंटा पकता है जब पाया बन रहा है, बिना मिर्ची का बनाइए, रोटी चूर के खाइए, दैट इज फैंटास्टिक फॉर हीलिंग। आपके जो स्टिचेस हील बहुत अच्छे से होंगे, दूध अच्छे से आएगा, और ये जो रोटी चूरना है, आपको नॉनवेज की क्रेविंग भी फुलफिल हो जाएगी और उतना हार्ड प्रोटीन आपके पेट में नहीं जाएगा। आपको सारे जो ऑल द मिनरल्स जो बोन में रहते हैं वो पूरे लीच आउट हो जाते हैं पाया कुकिंग में, बोन ब्रॉथ जो बोलते हैं। और आजकल नया फैशन निकला है वेस्ट में वैसे बोन ब्रॉथ का, दे आर कैचिंग अप टू आवर कल्चर ऑल्सो। तो दिस इज नॉट लाइक स्टू, दिस इज नॉट लाइक सूप, दिस इज बोन ब्रॉथ। जो आप कोई भी पाकिस्तानी या इंडियन मुस्लिम कुकिंग चैनल पे जाओगे, आपको पाया की बहुत जबरदस्त रेसिपी मिल जाएगी, आप वो फॉलो कीजिए, बहुत सुकून से आपका डाइजेशन होगा और आपकी क्रेविंग भी फुलफिल हो जाएगी। Would you like to add something to the diet, or we have Yeah, to? two points more are Yes. there with me to tell people. Actually, एक होता है बीज की सब्जियां, इस पे आपको बहुत एम्फोसिस करना है। जैसे आप वो वाली बीज की सब्जियां नहीं लें जिनके डाइजेशन में टाइम लगता है, लाइक ब्रिंजल इज वन, कैप्सिकम इज वन, देन देयर इज टोमेटोज जो प्रॉब्लम करता है, जैसे आपके कॉलीफ्लावर है वो बहुत प्रॉब्लम करता है, एंड देन देयर इज दिस थिंग कॉल्ड I think I have covered all of them. Yeah, I have covered कॉलीफ्लावर फैमिली tomatoes. के सारे मेंबर्स बता देते हैं Yes, ताकि yes. कंफ्यूजन ना हो। Yeah. कॉलीफ्लावर में मेंबर्स है, कैबेज होता है, और उसके 2 कजिन्स है जो वेस्ट में बहुत हल्ला मचा दिए हैं अभी। वो है एक ब्रोकली और एक है केल। वो सब एक ही माँ के बच्चे हैं, केल, ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर। तो जरा सा अवॉइड करिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। केल और ब्रोकली को जरा सा आप वापस यूएस भेज दीजिए। हमारे यहाँ पे बहुत किस्म की सब्जियां बन रही है, and we don't need to import all of those things, and थोड़ा सा अवॉइड कीजिए बिकॉज ब्रोकली एंड केल का काफी फैशन चल रहा है आजकल। So I wanted to इसमें touch कोई upon भी that. कैप्सिकम लोगों को थोड़ा पसंद है, और ब्रिंजल तो स्पेसिफिकली हमारे इधर का पेशेंट बहुत पूछता है कि हम बैंगन की सब्जी खा सकते हैं, क्या हम मटर की सब्जी खा सकते हैं, तो इस चीज को हमको अभी अवॉइड करना है। थोड़ा Rest, आलू से भी nutrition, थोड़ा गैस बनता है बच्चे को भी, तो जस्ट बी केयरफुल, मॉडरेशन में खाना है, पूरा पूरा दिन नहीं आपका खाना। जो भी डाइट है, डाइट इज समथिंग लाइक विच इज इजीली पैलेटेबल टू यू, और जो आपको मॉडरेशन क्वांटिटी में खाना है। बिकॉज देखिए, जब आप ब्रेस्ट फीड करते हैं तो व्हाट हैपेंस इज आपके कैलोरीज बच्चा ले रहा है, आपको भूख लगेगी, बहुत क्रेविंग होगी, इसलिए पहले बैलेंस डाइट से पेट भरें, उसके बाद ये सारे ऊपर के अच्छे अच्छे पौष्टिक सामान लें। Exactly. That should add to your food, and that should not be your only food. Yes, So yes. Dr. Shubhanjali sees कि too much eating, and I see like फेंक रहे हैं, नहीं खाना है, वेट लूज इंस्टेंटली करना है। तो इन आवर प्रैक्टिसेस वी सी ऑल काइंड्स, एंड आप तो यूपी से है तो वेरी रिच कल्चर ओवर देयर, हम खाने के तो बड़े शौकीन रहते हैं वहां पर तो। और इन मेट्रो लाइक बैंगलोर सब डाइट के बड़े शौकीन हैं, इंस्टेंट वेट लॉस के शौकीन हैं। सो वी सी बोथ काइंड्स ऑफ पेशेंट्स। And Dr. Shubhanjali, we have 2 audience questions. You can see it in the chat. Before we take that, let's talk about preparation of the breast. I'm really looking forward to this topic. You can give pregnant moms who have tuned in. This is a fantastic next 5 minutes. We're going to be talking about preparation of the breast, and we'll take the last audience questions. Please go ahead. One thing I just wanted to add here, as the weight loss part is coming in postpartum period. देखिए, वेट इज अ वेरी एसेंशियल थिंग जो हमारे दिमाग में रहता है, वजन कम वजन कम वजन कम, जो बहुत डिफिकल्ट है टू अटेन। तो इसलिए पोस्टपार्टम पीरियड में आप ये मत कोशिश करिए कि एकदम डिलीवरी हुई और आपका वजन कम हो जाएगा। आप एंटीनेटल पीरियड से अगर अपने आप का ध्यान रखेंगे, अपने खाने पीने का सुचारू रूप से चलाएंगे, तो पोस्टपार्टम में आपको ये वाली प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और जिस समय में आप बेबी को फीड करा रहे हैं, आपके दिमाग में जब आप बच्चे को फीड करा रहे हैं, ये मेरा मैसेज है, ये मेरा आह्वान है लोगों से कि इस बात को गंभीरता से सुने। जब आपका बच्चा डिलीवर हो गया है तो शुरू के 6 महीने किसी भी औरत के लिए
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है अपने बच्चे को फीड कराना, दैट्स इट एंड फुल स्टॉप। आप एक्सरसाइज, आप बाकी की सारी दुनिया की चीजें वापस से रिज्यूम कर सकते हैं, लेकिन वो 6 महीने जो बच्चे के पूरे जीवन को डेवलप करता है, बनाता है, वो आप उसके वापस नहीं ला सकते। तो इसीलिए आपका काम, आपकी डाइटिंग, आपका एक्सरसाइज, आपकी कोई भी ऐसी पर्सनल चीज जो आपके दिमाग में बॉदर कर रही है कि अब मेरी डिलीवरी हो गई, अब मैं ऐसे करूंगी। फॉर द वर्किंग मदर्स, आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम अ वर्किंग, बट यस, आई हैव नॉट बीन अ मदर टिल नाउ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं, बट इन एनी कंडीशन, इन एनी सिचुएशन, वी विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन कि हमको बच्चे को 6 मंथ्स इज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ये एक ऐसी चीज है जैसे कोलेस्ट्रॉम शुरू के 5 दिन आपने बच्चे को बूंद दिया, ऐसे ही शुरू के 6 महीने वो बच्चे का गिफ्ट है, जिसमें आप बच्चे को पैसे से कुछ भी खरीद के ला देंगे, वो उससे सेटिस्फाई नहीं होगा। सो यू शुड नॉट बी वरिड ऑफ वेट लॉस, बिकॉज अगर आप प्रॉपरली बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएंगे, आपका वेट अपने आप लूज होता चला जाएगा। Exactly. ये आप ऑब्जर्व करेंगे। बैठे So, बैठे 500 से 800 कैलोरीज यूं, दैट्स द ड्रीम, बैठे बैठे वेट लॉस हो रहा है। एंड अगर आप शुरू में, ऐड टू दैट पॉइंट, आप जो शुरू के जो 3 से 6 महीने आप अगर अपनी बॉडी हीलिंग बॉडी है, रिकवरिंग बॉडी है, उसको अच्छे से खाना देंगे, द बॉडी विल रिस्पेक्ट यू, इट विल नॉट गो इनटू दैट पैनिक मोड ऑफ सेव एनर्जी, कॉर्टिसोल बढ़ रहा है, हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, एंड पेट में जो एडिपोसिटी, पेट में जो फैट आता है वो नहीं होगा। द बॉडी विल फील नरिश्ड। आपका दिमाग अगर सोचेगा हमको खाना मिलेगा, वो खुद ही लूज करेगा। अगर आप जितना कम देंगे बॉडी को, उतना वो ज्यादा खींच के रखेगा। एंड आई थिंक दैट एंड्स आवर टॉपिक अबाउट diet of the mother. And we will we'll just take the questions here. There are two questions in front of me. Yeah. So Priyanka has asked a question to me कि मुझे inverted nipple की problem है, मैं कैसे बेबी को ठीक से फीड कराऊं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई जस्ट शॉर्ट में मैं बताती हूँ आपको। देखिए, इन्वर्टेड रिट्रैक्टेड निपल्स का मतलब ये मैंने बताया, अगर ये निपल की सरफेस है तो उसमें एक प्रोट्रूबरेंस होती है 1 सेंटीमीटर की, जिसको निपल कहते हैं। इन्वर्टेड निपल का मतलब है कि वो अंदर की तरफ डिप्रेस्ड है, उसका प्रोट्रूबरेंस बाहर नहीं है। अब इस स्थिति में हमें क्या करना होता है, देखिए जब आप डॉक्टर के पास होते हैं तो वो आपको सलाह दे सकती है, और जो सिस्टर और नर्सेज होती हैं वो रिट्रैक्टेड इन्वर्टेड निपल्स को इवर्ट मतलब बाहर निकालने में मदद करते हैं। अगर बाय द वे आप उस एक्सरसाइज को भूल गए हैं तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। एक कोई भी 10 ml की सिरिंज आप बाजार से खरीद ले आए, डिस्को 1 करके आती है, उसका आप ऊपर का जहां पे आप करते हैं ना, प्लंजर होता है, नोजल होती है, उस नोजल की सतह को पूरा आप काट दें तो वो क्या होगा, एक हॉलो जैसा बन जाएगा। दिस इज द हॉलो एंड देयर इज बिहाइंड इज अ प्लंजर। अब इस हॉलो को आपको क्या करना है, प्लंजर को पूरा यहाँ तक लेना है, आई थिंक आप लोग समझ पाएंगे, और आपको इस प्लंजर को निपल की सतह पर लगा देना है, राइट। और फिर प्लंजर को धीरे धीरे करके आपको निकालना है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी गुड एक्सरसाइज विच यू कैन डू whenever you are feeding your baby. Another method is the breast pump. ब्रेस्ट पंप भी एक अच्छा सोल्यूशन है, परंतु ब्रेस्ट पंप से समस्याएं ये आती हैं कि जो फोर मिल्क और हाइंड मिल्क है उसका प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं आ पाता है, तो जो हम बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। और तीसरा होता है कि जब आप एंटीनेटल पीरियड में होते हैं उस समय में आप इस बात को आइडेंटिफाई कर लीजिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कि हमारे निपल्स का फॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है। दैट कैन बी ओनली डन। अदरवाइज जब आप सकलिंग रिफ्लेक्स बेबी का डेवलप करते हैं तो धीरे धीरे करके बच्चा जब सकल करना शुरू करता है तो ऑटोमेटिकली इवर्जन हो जाता है, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया कि निपल्स पे जब बच्चा लैच करता है तो वहां पे एक वैक्यूम डेवलप होता है और उस वैक्यूम से वो इजीली इवर्ट हो सकता है। एंड वन मोर थिंग, प्रियंका हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि एक दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं कि इन्वर्टेड निपल्स आजकल थोड़ा ओवर डायग्नोज हो रहा है फॉर द सिंपल रीजन कि माँ खुद को डायग्नोज कर रही है, नॉट अ गायनेकोलॉजिस्ट। तो व्हेन यू सी द निपल, और अब यूट्यूब पे कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो है उससे कंपेयर करेंगे, एंड यू सी द निपल ऑफ अ मदर जिसका बच्चा 2-3 महीने का है, हर निपल विल बी सो लॉन्ग दैट यू विल गेट स्कैर्ड ऑन सीइंग इट। फर्स्ट टाइम मॉम्स लिटरली गेट स्कैर्ड कि इतना बड़ा कैसे हो गया, मेरा तो फ्लैट है, मेरा इन्वर्टेड है, तो थोड़ा ओवर डायग्नोज हो रहा है। तो प्लीज गेट योर इन्वर्टेड निपल डायग्नोज बाय अ डॉक्टर, अ गायनेकोलॉजिस्ट, या फिर कोई लैक्टेशन कंसल्टेंट, सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट। क्योंकि मैंने प्रैक्टिस में देखा है कि नॉर्मल निपल्स है, बच्चा सक करेगा वो खुद ही निपल बढ़ता है, डिफरेंट पीपल्स निपल्स लुक डिफरेंट। ओके, देयर आर सम पीपल जिनका निपल
इंडिपेंडेंटली इतना बड़ा निकलता है. इट्स लाइक 2 सेंटीमीटर लॉन्ग भी देख चुकी हूँ मैंने प्रैक्टिस में. एंड देयर आर सम जिनका एकदम हम्बल सा छोटू सा रहता है, डूइंग द जॉब परफेक्टली वेल. तो इट्स अ लिटिल ओवर डायग्नोस्ड. प्लीज गेट इट डायग्नोस्ड बाय अ डॉक्टर ओनली. वो बताएंगे इन्वर्टेड है कि आप खुद को ओवर डायग्नोस कर रहे हैं सेल्फ डायग्नोसिस से. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. And the next question that we have is, what should I eat after my delivery? My baby has jaundice. She's 10 days old. Doctor said she will be fine, no medication needed. But my mom-in-law is giving me only boiled food. Will it be fine for my health to eat only boiled food? देखिए, यहाँ पर 2 इश्यूज हैं डॉक्टर फरा. फर्स्ट ऑफ ऑल, द बेबी का जॉन्डिस. अभी वी डू नॉट नो कि बेबी का जॉन्डिस किस कारण की वजह से है. देयर आर न्यूमरस कॉजेज व्हिच वी कैन नॉट डिस्कस इट हियर. बट यस, एक चीज होती है कि अगर बच्चे को जॉन्डिस होता है तो बच्चे को रिफ्यूजल टू द फीड्स हो जाता है. उसमें इतनी शक्ति ही नहीं बचती है कि वो ब्रेस्ट फीड करे. तो जब आपका बच्चा जॉन्डिस्ड है, आप उसमें सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप एक्सप्रेशन ऑफ द मैनुअल एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क करके और उसको स्टोर कर लें, और जब भी बेबी को जरूरत हो आप उसको निपल से पिला दें. द कटोरी एंड चम्मच शुड बी एब्सोल्युटली बैंड. जितने बड़े लोग हैं यहाँ पे, मैं फिर एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्लीज आप लोग कटोरी चम्मच न इस्तेमाल करें. द ओनली प्रॉब्लम विद कटोरी चम्मच इज बच्चे की यहाँ पर एक छोटी सी कवर होती है एपिग्लॉटिस नाम की, जो डेवलप्ड नहीं होती, और बच्चे को जब आप पिलाते हैं तो वो सीधे की सीधे सांस की नली में चला जाता है और बच्चा कॉट डेथ हो जाता है. मींस जब आपने लिटाया बच्चे को तो बच्चा खत्म हो सकता है. इसलिए इन एनी सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस अगर आप दूध पिला रहे हैं विच इज एक्सप्रेस्ड, इट शुड बी इन द बॉटल. सो जॉन्डिस के लिए ये वाली चीज. दूसरी चीज, बॉइल्ड फूड इज नॉट अ प्रॉब्लम. आप बॉइल्ड फूड के अंदर मिर्च मसाले न डालें. बॉइल्ड वो इसलिए दे रही होंगी बिकॉज आपका बच्चा जॉन्डिस्ड है. अगर आपको ज्यादा गैस डेवलप हुआ तो बच्चे को नुकसान हो सकता है. तो मैं यही बस आपसे कहना चाहूंगी कि यू टेक योर फुल मील, प्रॉपर फुल मील. आई एम नॉट सेइंग यू कंप्लीटली टेक अ बॉइल्ड, लेकिन अगर आप छौंकते हैं तो जीरे से छौंक लीजिए, उसमें नमक डालिए, मिर्च मसाले मत डालिए. दैट इज नॉट अ बॉइल्ड फूड. एग्जैक्टली. मिर्च मसाले थोड़े कम रखिए. एंड प्लीज फॉर्मूला पे जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज समवन विल से कि ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस हो गया है. डोंट बिलीव दैट. इट इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन. और वो एक्सक्लूड करके भी कुछ महान काम होता नहीं है, बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क स्टॉप विल हेल्प इन रिमूविंग द वो जो येलोनेस जिससे आ रही है बिलिरुबिन. ब्रेस्ट मिल्क विल हेल्प इन रिमूविंग इट, इन क्लियरिंग दैट आउट ऑफ द बेबीज बॉडी. तो फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है. And let's wrap it up. We have kind of crossed the 5-minute mark, but let's wrap it up with the preparation of the breast. Anyway, आपने बहुत अच्छे से inverted nipples का बता ही दिया है already. For people tuning in now for preparation of the breast, Dr. Shubhanjali is going to tell us how to prepare your breast during pregnancy. And we already have spoken about inverted nipple. You can play back and watch what she spoke 10 minutes ago, and you can just take it further from there. Yeah, before that, one more point which is very important and it is very commonly faced. That is the cracked nipples. एक cracked nipples जो होते हैं बहुत ही commonly हमारी lactating mothers को problems होती हैं. तो आप उससे ना घबराएं. बहुत painful होता है, patient बहुत ज्यादा दर्द में आ जाता है, लेकिन उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं. आप क्या प्रिवेंशन, देखिए cracked nipples मतलब जो ऊपर की सतह की जो खाल है वो टूट गई है. बच्चे का जब पूरा सकिंग रिफ्लेक्स होता है तो उसका म्यूकस मेम्ब्रेन जब निपल से घर्षण खाता है, फ्रिक्शन करता है, तो वो टूट जाता है. उसमें आप कुछ चीजें कर सकती हैं. बहुत सारे मेडिकेटेड क्रीम्स आते हैं जिनको आप अप्लाई कर सकती हैं, बट इट इज कॉस्टली नो डाउट, और वो अगर बच्चा मुंह में लेता है तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है. दूसरी चीज आती है देसी घी एंड बटर. तो आप क्या करिए कि बच्चे को जब आपने फीड करा दिया है तो आप अपने निपल्स पे देसी घी या बटर, व्हाट इज इजीली अवेलेबल एट योर हाउस, आप उसको लगा के छोड़ दीजिए. जब भी आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं, आप या तो उसको वाइप ऑफ कर सकते हैं, या अगर वो बच्चे के मुंह में चला भी जाता है तो उसमें कोई समस्या नहीं है. और थर्ड सिचुएशन क्या आती है कि जो मिल्क ही होता है उस मिल्क को प्रॉपरली आप उस क्या नाम है निपल पे, क्रैक निपल पे अप्लाई कर दें. बट क्योंकि वो इतना लिक्विड होता है कि वो कभी कभी छूट जाता है तो पेशेंट को पेन ज्यादा होता है. तो अलोंग विद द घी यू कैन ऐड दिस जो आपका ब्रेस्ट मिल्क है. फोर्थ एक चीज आती है दिस इज कॉल्ड सिलिकॉन शीट्स. सिलिकॉन शीट्स आर नॉट इजिली अवेलेबल, दे आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, और वो टेक्निकली इतनी डिफिकल्ट होती है कि सब लोग अप्लाई नहीं कर पाते. नो डाउट इट इज पेनफुल कंडीशन फॉर द मदर. जिसको ये, मैं तो बड़े इजीली बोल रही हूँ, लेकिन जिसको ये हो रहा होगा वो बड़ा मनी मन मुझे गाली देगी कि इतना आसानी से कह दिया. या बट
हमें अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए इतना दर्द भी हम सह लेंगे, इट इज नॉट एन इशू. सो क्रैक्ड निपल्स इज वन प्रॉब्लम जिसको आई फेस वेरी कॉमनली. एक और चीज मैं बताना चाहूंगी और हाईलाइट करना चाहूंगी बिफोर आई प्रोसीड फॉर द एंटीनेटल केयर. अजवाइन का पानी विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो मैं पहले बताना थोड़ा सा मैं मिस कर गई. जो भी पोस्टपार्टम लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको अजवाइन का पानी इज वेरी गुड टू टेक, बट इट शुड बी वंस अ डे in a very small quantity, not more than 250 ml or 120 ml. पूरे दिन आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिए, परंतु आप अजवाइन का पानी अगर लेना चाहते हैं इट शुड बी जस्ट 120 ml. So these were two important things. And हाँ, one more point about a cesarean section feeding जो हम नहीं डिस्कस कर पाए. जैसे ही बेबी का सिजेरियन सेक्शन होता है, आप इस बात से न घबराएं कि मदर अपने बच्चे को फीड नहीं कर पाएगी, क्योंकि आजकल का जो टेक्निक ऑफ डूइंग सिजेरियन सेक्शन है या फिर बेहोशी देने का है वो इतना एडवांस्ड है कि अगर हमने सुबह सेक्शन किया है तो अगले दिन पेशेंट अपने आप यूरिन पास करने जा सकती है, मींस शी इज मोबाइल. मैंने आपको एक लाइंग डाउन मेथड बताया कि आप करवट लें और आप अपने बच्चे को लाइंग डाउन पोजीशन में दूध पिला सकते हैं. और सेकेंड डे जब हम मदर का कैथेटर मींस पेशाब की नली को रिमूव कर देते हैं तो आप कुर्सी पे बैठ के भी प्रॉपरली बच्चे को फीड करा सकते हैं, क्योंकि सिजेरियन के पेशेंट्स में हम यही पूरे दिन जूझते हैं कि सिजेरियन हो चुका है इसलिए हम बेबी को फीड नहीं करा सकते. सो दीज वर सम पॉइंट्स जो मैं आपको पर्सनली बताना चाहती थी. और नाउ आई विल कट शॉर्ट एंड टेल यू वन थिंग कि जब एंटीनेटल पीरियड होता है उस समय में आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है, निपल्स का डेवलपमेंट है, तो आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन को ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराएं. और एग्जामिनेशन कराने के बाद अगर ऑब्स्टेट्रिशियन फील्स दैट यू आर हैविंग नॉन डेवलपमेंट, मतलब ब्रेस्ट की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है, तो व्हाट हैपेंस इज वी एडवाइज यू अ सर्कुलर मसाज व्हिच इज फ्रॉम आउटसाइड टू इनवर्ड्स. मीन्स अगर ये सतह है और यहाँ पे निपल है तो हम बाहर से एक ऐसे मसाज करते हैं किसी भी मॉइस्चराइजर से, और ये अगर निपल है तो वी ट्राई टू पुल इट आउट एंड लीव इट. We try to pull it out and we leave it. So इस exercise से when both the sides we do, so it helps in the formation of the nipple. You can start this exercise when your pregnancy is 6 months or 5 months, depending upon what kind of a breast nipple you have. So thank you so much, Dr. Shubhanjali. That brings us to the end of our live session. I think it was a very fruitful session. And whoever have tuned in, please share it with your friends, have a watch party, share it. ये रहने वाला है Facebook Live, like whatever on the internet. So you can watch it anytime. You can refer a friend in pregnancy. And thanks a lot for joining us. I had a wonderful chat with you. Yes. Only one point, and it will be, I think, a conclusive session. देखिए, हम अपने बच्चे को तैयार कर रहे होते हैं कि वो आगे की टीचर्स से अपने सेशंस ले, लेकिन जो भी एक माँ होती है जो बच्चे को फीड कराती है, वो उस समय में उसका बच्चा उसको गुरु होता है ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए. तो आपने या मैंने जितना भी उसको सब चीज सिखाई है उससे ज्यादा वो बच्चा उसको प्रॉपरली सिखा देगा. Rest we can just give the advice to them. And support them more than anything. Support. Yes. Thanks a lot, Dr. Shubhanjali. It was so much fun talking to you. Same okay, here. That brings us to the end of our live. Join us tomorrow. We'll be talking. It ended. It has ended. The live stream ended actually. The link ended. All right. Thanks a lot, Shubhanjali. It was so much fun. Let's stay in touch. Yeah, sure. Okay. Thank you everybody for listening. Bye. Am I audible? Okay. Take care. The Facebook link ended. Okay. Bye, Shubhanjali. Bye.